ये सिद्धेश को भेज आवाज मेरे भेज दे पहले। आवाज आ रही है, जाओ यहाँ से। हेलो, आवाज आ रही, जाओ जाओ यार यहाँ से। Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And dear students, in our today's lecture we will discuss about the important objective questions or MCQ questions from the chapter number 12, that is mineral nutrition for class 11th, and the name of the chapter is mineral nutrition. And regarding this chapter, today we will discuss important top 20 MCQ questions for the second term examination. So let us start with our top important 20 questions regarding the chapter, that is the mineral nutrition. तो कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था बेटे कि मिनरल न्यूट्रिशन होते क्या है. Mineral nutrients are very essential for the growth and the development of the plants, and these mineral nutrients are absorbed by the roots, and after that they can be transported to the various parts of the plants. Water and minerals, these are directly absorbed by the roots, and by the roots they can be transported to the various parts of the plant. Now let us start with our first question regarding the chapter, that is mineral nutrition, and your first question is, in plants common symptoms that is caused by the deficiency of phosphorus, potassium, calcium and magnesium. तो यहाँ पर जो बेटे आपके प्लांट्स में स्पेशली कॉमन सिम्टम्स जो कॉज्ड होते हैं बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, एज वेल एज मैग्नीशियम है. तो कौन से ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो इन एलिमेंट्स की कमी की वजह से प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो कल हमने वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था. उन एसेंशियल एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और उन एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी की वजह से कौन से ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो वेरियस प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो अगर प्लांट्स में कॉमन सिम्टम्स जो है वो कॉज्ड होते हैं इन एलिमेंट्स की कमी की वजह से, जो कि आपके पोटाशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या फिर मैग्नीशियम है. सिम्टम्स आर आइदर बेंडिंग ऑफ द लीफ टिप, सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन्स, C is the poor development of the vasculature, and the last one is appearance of dead necrotic tissue. So which are the deficiency symptoms that are caused by the plants in case of the elements that are potassium, phosphorus, calcium as well as magnesium. या तो जो leaves है वो bend कर जाएंगी, या फिर formation होगी anthocyanins की. Next, poor development of the vasculature, and the last one is appearance of the necrotic tissue. So which is the correct option for the question number 1, and you have to be choose the right option for the question number 1. तो बेटे यहाँ पर आपको एक right option जो है वो choose करनी है question number 1 के लिए. तो बेटे अगर प्लांट्स में हम कॉमन सिम्टम्स जो कॉज्ड होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं, अगर उनमें किन्हीं भी एलिमेंट्स की कमी पाई जाए, किन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी पाई जाए, तो उनमें कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं. तो उन एलिमेंट्स की कमी से जो प्लांट्स में सिम्टम्स पाए जाते हैं उस एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो कॉमन सिम्टम्स उनमें पाए जाएंगे, तो वो ये होगा कि जो अपीयरेंस होगी ऑफ द डेड नेक्रोटिक टिश्यू. दिस इज द कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट इज कॉज्ड बाय द एलिमेंट्स दैट इज फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम एंड magnesium in the plants. So here this is the appearance of the dead necrotic tissue. This is the correct option for the question number 1. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is function of Jenkins. Option A is closing of stomata. Second one is biosynthesis of 3-indole acetic acid. 3-indole acetic acid. 3-indole acetic acid. Third one is synthesis of chlorophyll,
and the fourth one is oxidation of carbohydrates. इनमें से what is the function of zinc? Either there is the closing of the stomata, formation of the biosynthesis of the 3-indole acetic acid, synthesis of chlorophyll, and the last one is oxidation of carbohydrates. तो जो function है बेटे जिंक का, उसमें क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज नॉट कॉज्ड बाय द जिंक। जो बायोसिंथेसिस है 3-indole एसिटिक एसिड की, वो भी आपका फंक्शन नहीं है जिंक का। उसके बाद जो आपकी ऑक्सीडेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इट इज अगेन नॉट द फंक्शन ऑफ द जिंक, बट ओनली द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अगर आपकी जो सिंथेसिस है क्लोरोफिल की, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, so here synthesis of chlorophyll is the only function of the zinc. Chlorophyll is the green colored pigment that is present in case of the plants, and by this chlorophyll the green plants trap the sunlight, and with the help of this sunlight the green plants can prepare their own food themselves in the form of carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. After that it forms the carbohydrates. So here the main important function of the zinc is the synthesis of the chlorophyll. This is the right answer for the question number 2. Now shift to the question number 3, and your question number 3 is which of the following is a group of micronutrients? इनमें से कौन है जो कि मेन ग्रुप है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का? There are mainly two types of the nutrients that are present in case of the plants. One is the macronutrients and the second one is the micronutrients. Macronutrients are those nutrients in which they are present in a very large quantity, but in case of the micronutrients they are present in a very small quantity. So this is the micronutrient. तो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि out of these which is the group of the micronutrients? Either calcium, zinc, boron. Second one is iron, manganese, copper. Third one is chlorine, carbon, calcium, and the last one is nickel, molybdenum, and hydrogen. So which is the right group of the micronutrients in case of the फॉलोइंग ग्रुप्स? इन फॉलोइंग ग्रुप में से आपको ये जस्टिफाई करना है कि कौन है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी को जो आपका बिलोंग करता है ग्रुप बेटे, वो कैल्शियम है, जिंक है, बोरोन है, या फिर आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, निकल, मॉलिब्डेनम या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप है बेटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो है आपका आयरन, मैंगनीज एंड कॉपर. सो दिस इज द ग्रुप दैट बिलोंग्स टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जबकि कैल्शियम, जिंक, बोरोन, chlorine, carbon, calcium, nickel, molybdenum, hydrogen, all these are not belong to the group of the micronutrients, क्योंकि micronutrients are those nutrients which are present in a very small quantity, but rest of the groups they are present in a very large quantity. That means they belong to the group of the macronutrients. So here this is the right answer for the question number 3. Iron, manganese and copper. This is the group that belongs to the micronutrients. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is the process of conversion of NO2 to N2 is called as either nitrification, second one is ammonification, third one is denitrification and the fourth one is nitrogen fixation. तो इनमें से जो बेटे आपका प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं NO2 को N2 में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड है आइदर वो निट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, डीनिट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. तो जिस प्रोसेस में बेटे हम कन्वर्ट करते हैं NO2 को डायरेक्टली N2 में, दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज निट्रिफिकेशन, क्योंकि निट्रिफिकेशन की प्रोसेस में कन्वर्शन नहीं की जाती है NO2 की
N2 में। एमोनिफिकेशन की प्रोसेस में भी हम NO2 को कन्वर्ट नहीं करते हैं N2 में, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में भी we can't convert NO2 to N2, but only in case of denitrification we convert the NO2 to N2. So this is the right answer for the question number 4, that is the process of conversion of NO2 to N2. That process is called as denitrification. Denitrification. तो डीनिट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम NO2 को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं N2 में। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन is catalyzed by the enzyme. Your options are, option is dehydrogenase, second one is nitrogenase, third one is isomerase and the fourth one is none of these. And it is your question number 5. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कि आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर फॉर्मेशन है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, आपके कौन से एंजाइम की वजह से वो प्रोसेस जो होगा वो कैटलाइज्ड होगा। डीहाइड्रोजनेज है, नाइट्रोजनेज है, आइसोमरेज है या फिर नन ऑफ दीज है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि उसमें हम डीहाइड्रोजनेज का प्रोसेस नहीं करते हैं, आइसोमरेज का प्रोसेस भी नहीं होता है। Only the process is to be done in this case is nitrogenase. Nitrogenase एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज नाइट्रोजिनेज। सो हियर दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको बेटे जल्दी से आप नोट कर लें कि कौन सा ऐसा एंजाइम है दैट इज कैटलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दैट एंजाइम इज नोन एज नाइट्रोजिनेज। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मैंगनीज टॉक्सिसिटी लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी पाई जाती है after that it leads to the which deficiency? Options are either iron, B calcium, C magnesium and D is all of the above, and it is your question number 6। तो बेटे अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी लीड करती है किसी प्लांट में, that means it leads to the deficiency of iron, calcium, magnesium, क्योंकि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी जो होगी जिन जिन डेफिशिएंसीज को वो लीड करेगी, वो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होंगी, वो होंगी आपकी आयरन की भी डेफिशिएंसी पाई जाएगी, मैग्नीज की भी डेफिशिएंसी पाई जाएगी, इवन टू की कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी पाई जाएगी। दैट मींस आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। So all these are the deficiencies of the manganese toxicity. Number 1 is iron, second one is calcium and the third one is magnesium. All these are the deficiencies of manganese toxicity. So here this is the right answer for the question number 6. Now shift to the question number 7 and your question number 7 is chlorosis. Chlorosis will occur if a plant grown in. Options are if plants grown in a dark, if plants grown in a shade, if plants grown in a strong light, and the last one is if plants grow in an iron-free medium. Iron-free medium. So chlorosis will occur if a plant is grown in. If a plant is grown in. Chlorosis
कब अकर करता है? या तो हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे डार्क में, या फिर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे लाइट में, स्ट्रॉन्ग लाइट में, या फिर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे शेड में। एंड द लास्ट वन, या तो हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे आयरन फ्री मीडियम में। किस मीडियम में हम प्लांट्स को ग्रो करें जहां पर क्लोरोसिस का प्रोसेस अकर करता है? तो क्लोरोसिस जो है वो तभी अकर करेगा अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं आयरन फ्री मीडियम में, आयरन फ्री मीडियम। If plants grow in a iron free medium, at that time the process of chlorosis will occur. Chlorosis will occur. So chlorosis will occur only if plants grown in an iron free medium, not in the dark, not in the shade, and even not in the strong light. इनमें से किसी भी मीडियम में हम ग्रो करें तो क्लोरोसिस का प्रोसेस जो होगा वो अकर नहीं करेगा। क्लोरोसिस का प्रोसेस तभी अकर करता है प्लांट्स में जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं आयरन फ्री मीडियम में। सो हियर दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर क्वेश्चन नंबर 8 इज चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो बेटे आपको मैं याद करवा दूं, कल जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन के नोट्स के बारे में पढ़ा था तो उन नोट्स में हमने डिटेल में जितने भी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स थे उनके फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, और इवन उन एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी की वजह से कौन कौन से मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट्स में पाए जाते हैं वो भी हमने पढ़े थे। तो यही क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपको राइज होता है कि आपने करेक्ट फंक्शन जो है मैग्नीशियम का चूज करना है। It is a constituent of the several coenzymes. Second one is it activates the enzyme of respiration and photosynthesis. It activates the enzyme catalase, and last one, it helps in maintaining the cation-anion balance. Cation-anion balance. तो यहाँ पर बेटे आपको ये चूज करना है, magnesium is the essential element that is present in the plants. So what is the important function of the magnesium in case of the plants? Either it is a constituent of the several coenzymes, it activates the enzymes regarding the respiration and photosynthesis, it activates the enzyme catalase, and the last one is it helps in maintaining the cation-anion balance in the plants. So which is the मेन फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इन केस ऑफ द प्लांट्स? अगर हम यहाँ मैग्नीशियम की बात करें कि प्लांट्स के केस में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो बेटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेवरल कोएंजाइम्स का, तो वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है मैग्नीशियम का, क्योंकि ये रेस्ट एलिमेंट्स में भी मेन चीज जो ये पाई जाती है, ये एक्टिवेट करता है सभी एंजाइम कैटालेज को, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है मैग्नीशियम का। या फिर ये कहा कि ये हेल्प करता है, ये इट हेल्प्स टू मेंटेन द cation-anion बैलेंस। सो अगेन इट इज नॉट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम, बट हियर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज इट हेल्प्स टू और इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये एक्टिवेट करता है उन एंजाइम्स को जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। सो हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इन केस ऑफ द प्लांट्स, दैट इज इट हेल्प्स टू कैटलाइज और इट हेल्प्स टू activate the enzymes of the respiration as well as photosynthesis. So here this is the right answer for the question number 8. It is the right answer. Now shift to the question number 9, and your question number 9 is mineral salts which are absorbed by the roots from the soil are in the form of। अब हमें पता है कि जितने भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स का कौन सा पार्ट है उनको एब्जॉर्ब करता है। तो जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं दीज आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इनको रूट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। बट
इन विच फॉर्म, आइदर इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. थर्ड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो इनमें से बेटे कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें कि मिनरल सॉल्ट्स को एब्सॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे वो या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे या फिर वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे एंड द लास्ट वन या फिर वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे. तो यहां पर ये भी हमने डिस्कस किया था कल के नोट्स में कि जो आपके मिनरल सॉल्ट्स हैं, अब हमें पता है कि मिनरल सॉल्ट जो थे वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब किए जाते हैं बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, बट दीज आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द soil that is in the form of very dilute solution. Very dilute solution, काफी dilute solution की फॉर्म में जो है very dilute solution, काफी dilute solution की फॉर्म में जो mineral salts होते हैं these are absorbed by the roots from the soil, not in the concentrated solution form, not in the dilution solution form, and not in the very concentrated solution form, but only and only very dilute solution की फॉर्म में जो होते हैं वो मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. सो हियर दिस इज द राइट आंसर, रेस्ट आर द रॉन्ग ऑप्शंस. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 10 and your question number 10 is which one of the following mineral elements plays an important role in the biological nitrogen fixation? Options are copper, manganese, zinc and the last one is molybdenum. यहां पर बेटे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से, ऑल दीज आर मिनरल एलिमेंट्स, ये जितने भी बताए गए हैं कॉपर, मैंगनीज, जिंक या फिर molybdenum जो है ये सारे के सारे जो है वो आपके मिनरल एलिमेंट्स हैं एंड दीज मिनरल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट्स. पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में. सो चूज करें बेटे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा मेन इंपॉर्टेंट ऐसा फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट है जो कि स्पेशली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ओनली molybdenum. molybdenum एक ऐसा मिनरल एलिमेंट है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में. कॉपर, मैंगनीज, जिंक ये मिनरल एलिमेंट्स जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बट ओनली आपका जो मिनरल एलिमेंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका वो क्या है, molybdenum है. क्योंकि molybdenum एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में. So here this is the right answer. Next is your question number 11 and your question number 11 is oxygen squencers. Oxygen squencers present in the root nodules of the legume. Options are hemoglobin, leg hemoglobin, cyanohemoglobin as well as none of these. इनमें से आपको ये बताना है कि जो ऑक्सीजन स्क्वेंचर्स हैं वो स्पेशली रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं, पर वो कौन सा मेन आपका रूट नोड्यूल है. ठीक है, लेग्यूम कौन सा है, ये ऑक्सीजन स्क्वेंचर जो प्रेजेंट हमारे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम में वो कौन है आपका, हीमोग्लोबिन है, लेग हीमोग्लोबिन है, साइनो हीमोग्लोबिन है या फिर नन ऑफ दीज है. तो जो मेन ऑक्सीजन स्क्वेंचर हमारा प्रेजेंट है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम में दैट इज लेग हीमोग्लोबिन. hemoglobin, leg hemoglobin, not hemoglobin, not cyanohemoglobin and even not none of these, but only the oxygen squencher present in the root nodules of legume is leg hemoglobin. So here this is the right answer. Now shift to the question number 12 and your question number 12 is which of the following is not a micronutrient. इनमें से कौन है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है. There are two types of the nutrients that are present in case of the plants. One is the macronutrient and the second one is micronutrient.
Macronutrient are those nutrients which are present in a very large quantity in case of the plants, but micronutrients are those nutrients which are present in very small quantity. तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है. Options are magnesium, molybdenum, boron and the zinc. And it is your question number 12. So here beta molybdenum, boron, zinc, these are belong to the category of the micronutrients. पर जो इनमें micronutrient को नहीं belong कर रहा है, that is only and only magnesium. Magnesium is not a micronutrient. Magnesium is not a micronutrient. Magnesium is not a micronutrient. So remember आप बेटे इस चीज को याद रखें कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से नहीं है वो क्या है, मैग्नीशियम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि हम काफी स्मॉल क्वांटिटी में जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं, बट मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. Now shift to the question number 13, and your question number 13 is which of the following is not a macronutrient. अब इसमें से आपको ये बताना है कि macronutrient क्या है. Macronutrients are those nutrients which are present in a very large quantity. Options are iron, B calcium, C manganese and D is phosphorus. And it is the question number 13. आप इनमें से बताएं कि कौन है जो इनमें से macronutrient नहीं है. साथ में बेटे आप इन क्वेश्चंस को नोट भी करें, क्योंकि दिस इज द सिलेबस ऑफ द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाए जा रहे हैं. तो जल्दी से बेटे आप नोट कर लें कि इनमें से कौन है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इनमें से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है बेटे दैट इज मैंगनीज. Manganese is not a macronutrient, but iron, calcium as well as phosphorus, all these are macronutrients, but only manganese is not a macronutrient. Next is your question number 14, and your question number 14 is insectivorous plants grow where? Insectivorous plants are those plants which eats the insects. That means they capture the insects with the help of a special prey in them, and with the help of this prey they can easily capture the insects. So insectivorous plants grow where there is a carbohydrate deficient soil. Second one is there is nitrogen deficient soil. Vitamin C is required and the hormones are required for the growth of the insectivorous plants. तो जल्दी से बताएं बेटे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं. या तो वो वहां ग्रो करते हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट सॉइल होती है, या फिर वो वहां ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, या फिर विटामिन जो होते हैं विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड द लास्ट वन इज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ और द ग्रोइंग ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहां पर ग्रो करते हैं बेटे दैट इज ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है वहां पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. सो द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर देयर इज अ नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होगी वहां पर मैक्सिमम इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होंगे वो ग्रो करेंगे. वो वहां ग्रो नहीं करेंगे जहां पर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट सॉइल है, या विटामिन सी इज रिक्वायर्ड है, या फिर हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड. इन ऑल दीज कंडीशंस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर नॉट ग्रोन, बट ओनली इन द कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल there is the maximum growth of the insectivorous plants. So here this is the right answer for the question number 14. Now shift to the question number 15. And your question number 15 is phytotron is meant for, option A is controlled humidity, B induction of mutations, C controlled irradiation,
and the last one is growing plants under the controlled environment. So phytotron is meant for, it is a question number 15. फाइटोट्रॉन का क्या मतलब है? फाइटोट्रॉन का या तो ये मतलब है कि वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, या फिर देयर इज द इंडक्शन ऑफ द म्यूटेशंस, थर्ड वन इज देयर इज द कंट्रोल ऑफ द इरिडेशंस, एंड द लास्ट वन इज growing plants under the controlled environment. So here beta phytotron, the meaning of the phytotron is the plants grown under the controlled environment. ऐसा environment या ऐसे plants जिनको कि हम ग्रोन करते हैं अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जिन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज फाइटोट्रॉन. सो हियर phytotron is the condition where the plants growing under the controlled environment conditions, not under the controlled humidity. Phytotron का ये मीनिंग नहीं है, या फिर there is phytotron is not meant for the induction of the mutations. ठीक है, phytotron is not meant for the controlled irradiation, but phytotron is meant for the plants that are growing under the controlled environment. ऐसे प्लांट्स जिनको कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज फाइटोट्रॉन. नोट कर ले बेटे आप इसको जल्दी से. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16, एंड योर क्वेश्चन नंबर 16 इज टॉक्सिसिटी ऑफ, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 16, टॉक्सिसिटी ऑफ व्हिच एलिमेंट लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑन लीव्स. कभी आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो बन जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं लीव्स के ऊपर, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर, वो क्यों बनते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज ब्राउन स्पॉट्स दैट आर अपीयर्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स? एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 16. तो या तो उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है, या फिर देयर इज द lack of the manganese, iron and the copper. So what is the main toxicity of which the plants leads to the appearance of brown spots of the leaves? तो इनमें से किस एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें ब्राउन स्पॉट्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं? तो मैग्नीशियम एलिमेंट नहीं है जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होते हैं. आयरन की कमी की वजह से भी नहीं होते हैं. इवन कि कॉपर की टॉक्सिसिटी की वजह से भी जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं वो अपीयर होते हैं. बट ओनली विद द टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज, ओनली विद द टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज, बाय विच it leads to the appearance of brown spots on the leaves. So here this is the right answer for the question number 16. Now shift to the question number 17, and your question number 17 is presence of phosphorus. Presence of phosphorus brings about healthy root growth, promotes fruit ripening, retards protein formation, and none. So presence of phosphorus brings about the healthy root growth. या तो वो प्लांट्स की हेल्दी रूट ग्रोथ को ब्रिंग आउट करता है फॉस्फोरस की प्रेजेंस, या फिर वो फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रमोट करता है फॉस्फोरस जो है, या फिर जो फॉस्फोरस है इट रिटार्ड्स द प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज नन. एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 17. बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि जो फॉस्फोरस है वो किस चीज को लीड करता है. ब्रिंग्स अबाउट द हेल्दी रूट ग्रोथ, promotes ripening fruits, retards protein formation, and D is none of these. D is none of these. तो जो प्रेजेंस है बेटे आपकी फॉस्फोरस की, that is not brings about the healthy root growth, not promotes the fruit ripening, वो fruit ripening को भी promote नहीं करता है. Even to की जो presence of phosphorus की, it retards the प्रोटीन फॉर्मेशन, वो प्रोटीन फॉर्मेशन को जो है वो रिटार्ड करता है प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरस, प्रोटीन फॉर्मेशन.
So here the presence of phosphorus retards the protein formation. So here this is the right answer for the question number 17. Now shift to the question number 18, and your question number 18 is which element is required for opening and closing of stomata? This is the most important question. इनमें से कौन सा element है that is necessary for the closing and opening of the stomata? Options are phosphorus, potassium, calcium and sodium. So here which is the right answer for the question number 18? Which element is required for the opening and closing of the stomata? Options है phosphorus, potassium, calcium as well as sodium. So here beta, phosphorus is not the element that is required for the opening and closing of stomata. Calcium, sodium, all these are not required for the opening and closing of stomata. But only potassium is the element that is required for the opening and closing of stomata. Only with the help of the potassium there is the closing and the opening of the stomata. So here this is the right answer for the question number 18. Now shift to the question number 19, and your question number 19 is exanthema is due to the deficiency of options are boron, B molybdenum, It is your question number 19. Manganese, and the last one is copper. Exanthema is due to the deficiency of, किस deficiency की वजह से exanthema जो disease है वो होता है बोरोन, molybdenum, manganese या फिर copper. So here which is the right answer for the question number 19? Question number 19 का जो है वो आपको सही आंसर बताना है कि exanthema is due to the deficiency of either boron, molybdenum, manganese. बोरोन, मोलिब्डेनम या मैंगनीज की वजह से एक्सैंथीमा नहीं होता है, बट एक्सैंथीमा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. That is due to the deficiency of copper. So only with the deficiency of copper, exanthema is occurred. Now shift to the question number 20, and your question number 20 is NPK denotes. NPK denotes. Options are nitrogen, protein, nitin, nitrogen, protein, potassium, nitrogen, potassium, kynitin, nitrogen, phosphorus and potassium. So here NPK denotes. So here NPK denotes nitrogen, P for phosphorus, and K for potassium. So here NPK stands for nitrogen, phosphorus and potassium. So here beta we complete important 20. So here beta we complete important 20 MCQ questions or objective questions regarding the chapter that is the mineral nutrition, and this is chapter number 12 for class 11, and these are the important MCQ questions or objective questions from this chapter, and this is the syllabus for the second term examination. So once again good night to all the students who joined with us our APS class.